Next, important words used in coordination ligand. First, ambidentate ligand. According to ambidentate ligand, some unidentate ligands, there are two types of donor atom which can contribute with the central atom through more than one site a time. Such ligand are called ambidentate ligand. Means two donor atoms are present in ambidentate ligand, but one time only donor atom have coordination bond of central atom. For example, NO2 nitro group is a monodentate, but one time nitrogen central coordination bond of central atom, next time oxygen NO2 group oxygen coordination bond of central atom. Other examples of ambidentate ligand like as cyanide, first C bonded with central atom, next and first thiocyanate S, next N. Second important coordination ligand में chelate ligand, chelation और denticity. Polydentate ligands are used one or more donor atom to form coordination bond with central atom, so as give a ring like structure. Important, ring like structure is formed, then more stable other bidentate ligand. Ring like structure, this ring called chelate, and ligand is called chelation ligand. For example, bidentate, tridentate, tetradentate. Here bidentate ligand, ethane central atom metal bonded En whole twice. Here N and N bonded with central atom like as ring like structure. Next again ring like structure, then known as chelation or chelate ligand. Question: chelate ligand is more stable comparatively bidentate ligand. Discuss about here ring like structure, then because of formation of ring like structure, then more stable chelate ligand comparative to bidentate ligand. Next, coordination number. What is the coordination number? When central atom is attached to ligand, number of ligand to attached or coordinate bonded to central atom known as coordination number. Total number of ligand or donor atom attached to a central atom by coordination bond known as coordination number of metal ion. For example, CuCN whole 4. CuCN whole 4. Here Cu2 plus ion, coordination number of Cu2 plus is 4. Second example, FeC2O4 whole thrice. Coordination number of Fe3 plus is 6 because C2O4 is bidentate, means one monodentate, one ligand convert to bidentate. Then 3 number of coordination number is 6 because C2O4 is bidentate ligand. Next, coordination pair, ionic pair. The central metal and ligand which are directly attached to it are enclosed in a square bracket and are collectively termed as coordination pair. Means when central atom metal and ligand is bonded, square is bonded, coordination bond represent in square bracket known as coordination pair or ionic pair. Next, coordination entities. The ligand and metal atom inside the square bracket behave as a single constituent unit known as coordination entity. Two counter ion, first before counter ion square bracket and after square bracket counter ion. Before square bracket counter ion always positive, after square bracket counter ion always negative. The ionizable group written outside the bracket, outside, behind or before, outside the bracket is called counter ion and known as
ionic entities before square bracket, here K4, before square bracket positive and after square bracket always negative. For example, K4 FeCN whole 6, K is a counter ion, before always positive. Next example, Cr H2O whole 6 Cl3, Cl is counter ion, before after counter ion known as in negative charge. Next, coordination polyhedron, the total number of donor atom or ligand attached to the central metal ion in a coordination compound. Determine the spatial arrangement of the ligand around the central atom or ion is known as coordination space. For example, trigonal bipyramidal means metal bonded with 5 ligand, then structure is trigonal bipyramidal. Second example, square planar, when central atom is bonded with 4 ligand, then geometry is square planar. Square planar bipyramidal means octahedral, when central atom is bonded with 6 ligand. Tetrahedral, when central atom is bonded with 4 ligand. Last, homoleptic and heteroleptic complex, the complex in which only one kind of ligand group are attached to the central metal atom, one kind of, then known as homoleptic. For example, COCN whole 6, here Cn one kind of, then known as homoleptic. Second, FeNH3 whole 6, NH3 one kind of, then also known as homoleptic. The heteroleptic, the complex in which more than one kind of donor atom ligand are attached to the central metal atom. For example, CONH3 whole 4 Cl2, here two ligand, two types, then known as heteroleptic. For please note it on your notebook. For हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, उभयदंती लिगेंड, उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं या उभयदंती दाता परमाणु क्या होते हैं? वो दाता परमाणु जो एक जंतुक होते हैं, लेकिन उनमें डोनर परमाणुओं की संख्या, दाता परमाणु की संख्या 2 होती है, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उपसय संयोजक बंध बनाता है, दोनों एक साथ में बंध नहीं बनाते। इस प्रकार के लिगेंड उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NO2 ग्रुप, NO2 लिगेंड और एम्बिडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि NO2 ग्रुप में एक तो डोनर एटम N है और एक डोनर एटम O है, लेकिन N और O दोनों एक साथ में बॉन्ड नहीं बनाते सेंट्रल एटम के साथ में। यहाँ पहले नाइट्रोजन NO2 का नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसय संयोजक बंध, नेक्स्ट वाले में ऑक्सीजन बना रहा है, इस कारण ये उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। उभयदंती लिगेंड के अन्य उदाहरण साइनाइड हो सकता है, थायोसाइनाइड हो सकता है। फिर चिलेट लिगेंड या चिलेशन या दाता परमाणु की संख्या। चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है? पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ में, पॉलीडेंटेड का मतलब होता है बहुधातुक लिगेंड, जो केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ में उपसय संयोजक बंध का निर्माण करते हैं, लेकिन खुद रिंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, वलय के रूप में उपस्थित होते हैं, और इस वलय नुमा संरचना के कारण इनमें क्या आ जाता है? स्थायित्व आ जाता है। इसी कारण ये स्थायी लिगेंड के नाम से जाने जाते हैं। और क्वेश्चन कि द्वितंतुक लिगेंड और चिलेट लिगेंड में कौन सा ज्यादा स्थायी है? तो चिलेट लिगेंड ज्यादा स्थायी है, क्योंकि ये किसके कारण स्थायी हो जाता है? ये वलय का निर्माण करता है, इस कारण इसमें स्थायित्व आ जाता है। नेक्स्ट, उपसय संयोजन संख्या। उपसय संयोजन संख्या क्या होती है? किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु की उपसय संयोजन संख्या वह संख्या है जो उस केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड होते हैं या लिगेंडों की संख्या होती है, वो उपसय संयोजक संख्या कहलाती है। या इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि उपसय संयोजक संख्या किसी केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंडों के द्वारा बनाए गए उपसय संयोजक बंधों की संख्या उस केंद्रीय धातु परमाणु का उपसय संयोजक संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए CuCN whole 4 है, यहाँ Cu के साथ में 4 Cn है, इस कारण Cu2+ का
उपसर्ग संयोजक संख्या 4 है। सेकेंड एग्जांपल Fe2O4 होल थ्राइस, यहाँ Fe का उपसर्ग संयोजन संख्या 6 है, क्योंकि अपने को पता है ऑक्सीलेटो द्विदंतुक है, तो एक परमाणु के लिए 2 दाता है, तो 3 परमाणु के लिए 6 दाता परमाणु हो गए, इस कारण इसे इसका उपसर्ग संयोजक संख्या 6 होती है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन स्पेयर या आयनिक स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े हुए लिगेंड को एक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहलाता है। जैसे मेटल और लिगेंड उससे जुड़े हुए संख्या को यदि एक साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज क्या होती है, यदि लिगेंड और दाता परमाणु लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में को एक स्क्वायर ब्रैकेट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कहलाता है। फिर आयनिक स्पेयर या काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या होते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पहले या बाद में, इस स्क्वायर ब्रैकेट के पहले और बाद वाले जितने भी आयन है वो काउंटर आयन कहलाते हैं। पहले वाला काउंटर आयन हमेशा धनायन होगा और बाद वाला होगा वो हमेशा ऋणायन होगा। जैसे K4FeCl में K+, क्योंकि बिफोर इसके स्क्वायर ब्रैकेट से पहले आ रहा है, इस कारण ये धनायन के रूप में होगा। सेकेंड एग्जांपल CrH2O6 Cl3 है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में आ रहा है, इस कारण माइनस ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है कि केंद्रीय धातु परमाणुओं से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या के आधार पे, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं उसके आधार पे उनकी ज्योमेट्री या उनका विशेष स्थान का अरेंजमेंट या विशेष स्थान को व्यवस्थित करना ही उपसर्ग संयोजक पॉलीहेड्रॉन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, यदि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में 5 लिगेंड जुड़े हैं तो जो ज्योमेट्री होगी वो त्रिकोणीय द्विपिरामिड होगी। नेक्स्ट, ये अलग अलग ज्योमेट्री दे रखी है, वो डिपेंड करता है लिगेंड पे, जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या पे। फिर लास्ट टॉपिक, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यानी होमोलेप्टिक यानी समसंकुल और विषम संकुल। नाम के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा समसंकुल कंपाउंड कौन से हैं और विषम संकुल कंपाउंड कौन से हैं। समसंकुल कंपाउंड वो होते हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, वो तो होते हैं समसंकुल। और जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए होते हैं वो विषम संकुल कहलाते हैं। तो समसंकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या एक ही प्रकार की हो वो तो समसंकुल, और जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से अलग अलग लिगेंड जुड़े होते हैं वो विषम संकुल। प्लीज नोटेड, उतार लीजिए अपनी कॉपी में। Oxidation number of central metal atom in complex. How to find the oxidation number of central atom in complex? The oxidation number is valency with charge of central atom number. The charge left on central metal ion when all the ligands metal or ions are removed from the complex is known as oxidation number. When removal of the oxidation number of ligands ions removed, then form oxidation number of central metal. The oxidation number of central metal ion find out two process or used two rules. First rule, the sum of all the charges on central atom and ligand it equal to 0 in neutral complex, means total ligand charge will be 0, sum of 0. Then in neutral complex, the net charge on a complex ion is the sum of the charges on the central atom and its surrounding by ligands. Total charge, net charge on complex is depended by it formed by ligands surrounding central atom. For example, platinum NH3 whole thrice Cl3. The oxidation number of platinum in complex
The oxidation number of platinum can be determined by following process. Oxidation number of NH3. We know NH3 is a neutral ligand. Then oxidation number is 0. And oxidation number of chlorine is negative charge, then -1. Suppose the oxidation number of platinum, find out, suppose X. Then this value put up in this equation, then X plus 0 into number of moles 3 plus chlorine oxidation number -1 into number of moles 3 equal to 0, then X equal to +3. The +3 oxidation number of platinum in this complex. Second, for example, K3FeCN whole 6. Find out the oxidation number of central atom. K3 positive 1 plus FeX. Find out the oxidation number and Cn -1. Then +3 plus X plus -6 equal to 0. Total charge 0. Then 0. Then X equal to +3. Also oxidation number of Fe in this complex +3. For Hindi medium students, ऑक्सीकरण अंक किसी भी कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु परमाणु का किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसके लिए कि जो केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक होता है वह उसकी वैलेंसी यानी उसकी संयोजकता होती है, वो उसके चार्ज के साथ में रिप्रेजेंट की जाती है। जब केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात किया जाता है तो लिगेंड के और आयन के जितने भी ऑक्सीकरण अंक हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और जो बचता है वो केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के लिए 2 रूल काम में लिए जाते हैं। फर्स्ट कि जो टोटल सम है चार्ज या आवेश किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। किस संकुल में, उदासीन संकुल में। जो नेट चार्ज है वो किस पे डिपेंड करेगा, लिगेंड की संख्या पे डिपेंड करेगा। जो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग पार्ट में चारों ओर होता है उनके संयोजन पे डिपेंड करता है। अब देखिए एक एग्जांपल, प्लेटिनम NH3 होल थ्राइस Cl3, ये अपने पास में कॉम्प्लेक्स है और इसमें केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम है। इसका ऑक्सीकरण अंक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम कैन अपन ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH3 क्या होता है, उदासीन, और उदासीन का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। Cl नेगेटिव लिगेंड और उसका ऑक्सीकरण अंक -1 है। ये वैल्यू, दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं और प्लेटिनम जिसका ज्ञात करना है उसका माना X है, तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर Pt के स्थान पर रख दिया X प्लस 0, NH3 का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है और नंबर ऑफ मोल्स 3 होता है, प्लस क्लोरीन का -1 होता है इंटू नंबर ऑफ मोल्स 3 होते हैं, इक्वल टू टोटल चार्ज यहाँ पे 0 है तो इक्वल टू 0। X इक्वल टू 3 आ गया, इसका मतलब प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक +3 ज्ञात हो गया। नेक्स्ट टॉपिक फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, IUPAC nomenclature important part in coordination compound. IUPAC nomenclature of coordination compounds. 2 process. First written name process, second written formula process. First written name process or written name rules. First, in ionic complex, the cation named first and then anion. Always first written name, always cation first after anion. For example, Na2SO4, then written first sodium. We know sodium is cation and SO4 2 minus anion. Then first written name sodium after sulfate. Second rules है naming the coordination entity, the ligands are named first and then central atom. When first ligand name after central atom, when more than one type of ligand are present in these are named in alphabetical. First alphabetical, first name, after alphabetical, after name. Anionic ligand when ligand is anionic, then suffix always used. This discussed before time. Neutral ligand, as it same name. For exceptional gases, H2O, aqua, NH3, amine, CO, carbonyl, NO, nitrosyl. Positive ligand, suffix em.
always used em. Number of ligands represented by prefix when 2 ligand same di, 3 ligand same tri, 4 ligand same tetra, 5 ligand same penta, 6 ligand same hexa. Next important point, if the ligand already contain di, tri, tetra words like ethylene diamine, used di. Again 2 moles if it is polydentate ligands, the prefix like as 2, 2 bis, 3 tris, 4 tetrakis, 5 pentakis, 6 hexakis. For example, COEN whole thrice. En ethane 1,2 diamine. Diamine is at least first again 3 moles, then tris. Tris ethane 1,2 diamine cobalt third ion. Cobalt third ion when charge is present on complex. Next, fifth point, ligand which work as bridge then prefix mu is used. Means ligand in bridge form then used mu. When complex is anion, then suffix of metal atom. Complex total charge in anionic form, then suffix of metal atom used at. If the complex is cation or neutral, then no change of central atom. Means complex is neutral or positive, then central atom name as it. Oxidation state of central atom or an ion is written in parentheses in Roman number. We know Roman number, parentheses, small bracket, parentheses and Roman number like as 1, 2, 3. This is Roman number. Clear? कुछ some compounds are some complex are given written IUPAC name. But second rule, when formula is written, the formula of the cation, whether simple or complex, is written first. Then we write the formula of anion, simpler or complex. Second, the coordination entity is always written in square bracket. Formula name to formula, then coordination entities represent in square bracket. Always the sequence of symbol with the coordination entities according to alphabetical. First, the symbol of the central metal is written first, at least in square bracket. First, always central atom. First, the symbol of central atom. Second, the central metal is followed by ligand in alphabetically order. The different ligands are arranged alphabetically according to the first symbol of their formula. Some complex name given form formulas. For Hindi medium students, IUPAC नामकरण किया जाता है संकुल यौगिकों का. उसके लिए दो मेथड है. फर्स्ट तो वो नियम जिनसे अपन ने फॉर्मूला दिया होता है उससे नेम लिखना है, और दूसरे वो रूल या वो नियम जिनसे नाम दिया होता है उनसे फॉर्मूला बनाना है. पहले देखिए, फॉर्मूला दिया होता है उनसे नाम बनाने की मेथड देखिए. यदि अपने पास में आयनिक कॉम्प्लेक्स आयनिक संकुल है तो सबसे पहले अपन केटाइन का नाम लिखेंगे. जैसे Na2SO4 है, इसमें केटाइन धनायन कौन सा है? Na2. तो पहले दोनायन सोडियम का नाम लिख दिया, उसके बाद में एनायन का नाम लिखेंगे. सेकेंड रूल क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है, उसमें लिगेंड है तो लिगेंड को सबसे पहले लिखा जाएगा. लिगेंड को सबसे पहले उसके संख्या के आधार, उनके संख्या के साथ में, उसके बाद में सेंट्रल केंद्रीय धातु परमाणु को लिखा जाएगा. यदि लिगेंड एक से अधिक टाइप के प्रेजेंट हैं तो उनका नाम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट लिखा जाएगा.
जो फर्स्ट वर्ड पे डिपेंड करेगा। यदि लिगेंड एनायनिक लिगेंड है तो उसके सफिक्स अनुलग्न हमेशा ओ लगता है, यानी ऋणात्मक लिगेंड है तो उसके सफिक्स ओ लगेगा। यदि उदासीन है तो एजिट आएगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। लेकिन कुछ अपवादिक है, जैसे H2O को एक्वा लिखा जाता है, NH3 को एमीन लिखा जाता है, CO को कार्बोनिल लिखा जाता है, NO को नाइट्रोसिल लिखा जाता है। यदि धनायन लिगेंड है तो भी उसका सफिक्स ये ध्यान में रखना EM लगता है। नंबर ऑफ लिगेंड रिप्रेजेंटेड बाय परफिक्स, यदि लिगेंड के नंबर हैं, सेम नंबर हैं, तो उनको इस पूर्व लगन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि लिगेंड में पहले से ही संख्या इंडिकेट होती है, जैसे डाई ट्राई टेट्रा इंडिकेट हो रही है और उनके नंबर आउटर साइड में और नंबर हैं, तो उनके लिए 2 के लिए तो 20 लगाया जाता है, यदि 3 है तो ट्रिस लगाया जाता है, 4 है तो टेट्राकाइस लगाया जाता है, 5 है तो पेंटाकाइस लगाया जाता है। उदाहरण के लिए COEN होल थ्राइस, यहां देखो इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन, इसमें पहले से डाई आ रहा है और इसके बाहर संख्या 3 है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? ट्राइस इथेन 1,2 डाइएमीन। कोबाल्ट, उसके बाद में इसका ऑक्सीकरण अंक पैरेंथेसिस में कितना है? 3, तो 3, और इस पे 3+ चार्ज दे रखा है तो आयन। अपन जानते हैं EN न्यूट्रल होता है, तो टोटल चार्ज किसका है? CO का है। इस प्रकार से इनका नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि लिगेंड सेतु के रूप में है, यदि लिगेंड सेतु के रूप में है तो उनमें पूर्व लगन के रूप में हमेशा म्यू का यूज किया जाता है। यदि कॉम्प्लेक्स एनायन, यदि कॉम्प्लेक्स टोटल यानी संकुल में टोटल चार्ज ऋणात्मक है तो केंद्रीय धातु परमाणु के पूर्व लगन के अनुलगन के रूप में हमेशा एट लगाते हैं। यदि कॉम्प्लेक्स धनात्मक या उदासीन है तो कोई चेंज नहीं होता है, उसका केंद्रीय परमाणु का नाम एजिट आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, केंद्रीय धातु परमाणु और एन आयन कि हमेशा पैरेंथेसिस का मतलब होता है छोटा ब्रैकेट, उसमें रोमन संख्या ये होती है 1, जैसे 2 लिखा जाए तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो ये 4 होता है, 5 है तो ये 5, ये रोमन संख्या में लिखी जाती है। इस प्रकार से नाम बनाए जाते हैं फॉर्मूले से। सेकेंड रूल वो जिनसे नाम से फॉर्मूला बनाया जाता है, इनका फॉर्मूला बनाने का रूल देखिए। सबसे फर्स्ट क्या होता है कि केटाइन है उसको लिखा जाता है, उसके बाद में केटाइन का फॉर्मूले के बाद में एनाइन को लिखा जाता है। यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है सबसे पहले। और यदि जो लिगेंड है उसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में यदि लिगेंड है तो उनको सिंबल के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। फर्स्ट द सिंबल ऑफ द सेंट्रल मेटल इज रिटन, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु को, उसके बाद में लिगेंडो को लिखा जाता है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। यदि मोर देन टू या मोर देन 2 है तो, यदि एक है तो उसको अकॉर्डिंग अल्फाबेट का यूज नहीं करेंगे। डिफरेंट लिगेंड है तो उनको अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। जो पहले आएगा अल्फाबेट में उसको पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखा जाएगा। ये सेकंड रूल जिनसे अपन फॉर्मूला नाम दिया होता है उनसे फॉर्मूला बनाने का। ये अपने दोनों एवर देख लीजिए, फिर मैं इनके एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मूला गिवन, राइट द नेम अकॉर्डिंग टू अबव रूल्स। फर्स्ट सोडियम, after write the square bracket, before metal always, before counter ion always first, write the first, after square bracket write the ligand, number of ligand, here number of ligand 2, then use the die, and ligand is Cn nature is negative, then suffix is O, cyanido,
after central atom argentate first, because at suffix at when total complex is negative or second before counterine, then central metal atom always used at. फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, ये अपने पास में संकुल दिया हुआ है, इसका नाम अपने को लिखना है, फॉर्मूला दिया हुआ है उसका नाम लिखना है। नाम लिखने में सबसे पहले यदि स्क्वायर ब्रैकेट से पहले काउंटराइन है तो उसका नाम लिखा जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट से पहले वाले का। तो यहाँ काउंटराइन क्या है? सोडियम। यदि यहाँ सोडियम की संख्या विधि होती है 2 या 3 तो नाम संख्या नहीं दर्शाते, उसके सीधा नाम लिखा जाता है। तो सोडियम। अब उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आओगे तो सबसे पहले लिगेंड, और लिगेंड यदि 2 या 2 से अधिक है तो उनका तो अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग है, यदि एक प्रकार का है तो उनका संख्या लिखा जाएगा। संख्या कितनी है? 2, तो लगा दिया डाई। फिर उस लिगेंड का नाम साइनाइड होता है, लेकिन लिगेंड की नेचर कैसी होती है? ऋणात्मक, तो सफिक्स लग जाता है ओ, साइनाइड। फिर अर्जेंटम होता है, लेकिन एट आया क्यों? क्योंकि यदि स्क्वायर ब्रैकेट से पहले कोई काउंटराइन आता है तो एट लगता है केंद्रीय धातु परमाणु के, और यदि संकुल पर टोटल चार्ज यदि ऋणात्मक है तो एट लगेगा। दो ही कंडीशन में याद रखना। तो इसका नाम हो गया सोडियम डाइसाइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट। सेकेंड फॉर्मूले का नाम लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फर्स्ट मरकरी, आफ्टर स्क्वायर ब्रैकेट टेट्रा, CnS known as thiocyaneto, after central atom cobalt, cobaltate, because before counterine. After oxidation number according to above formula used, then oxidation number is 3. फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, यदि इसका नाम लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले काउंटराइन अपने पास में मरकरी, उसके बाद लिगेंड एक ही प्रकार का, उसकी संख्या 4 टेट्रा, उस लिगेंड का नाम थायोसाइनेटो। फिर कोबाल्ट, तो कोबाल्ट के 8 लगा, क्यों लगा? क्योंकि इसमें पहले काउंटराइन आया और उसका ऑक्सीडेशन नंबर किस में? पैरेंथेसिस में, रोमन वर्ड में। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, सबसे फर्स्ट डाई में 2 कॉम्प्लेक्सेज राइट सेल्फ। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इन दोनों फॉर्मूलों के नाम अपने आप लिखने हैं, क्लियर? और लिख के मेरे को वापस शीट में दिखाना है। नेक्स्ट सेकेंड रूल, व्हेन फॉर्मूला इज फॉर्म्ड, व्हेन नेम इज गिवन देन फॉर्मूला इज फॉर्म्ड, लाइक एज फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट पोटेशियम, पोटेशियम मीन्स first metal then always counterine, before counterine potassium K, after square bracket always first square bracket always first in metal, central metal atom just before oxidation number, zincate means Zn, tetrahydroxido means OH, tetra means number of moles 4, but oxidation number is not balanced, Zn plus 2 hydroxido minus 4 plus 2 minus 4 then balanced K2. Next example, tetraamine without combine, direct square bracket, first tetraamine chlorido cobalt, first always central atom before oxidation number, cobalt CO,
आफ्टर टेट्राएमीन NH3 whole 4 aqua H2O chlorido Cl. But after counter ion is present to the balanced of this complex central atom, cobalt oxidation number +3 minus 1 then +2. Here Cl how many moles? 2. हिंदी मीडियम इन दोनों के नाम लिख दिए। अब 3 जो दिए हुए हैं उनके नाम अपने आप लिखने हैं। सेल्फ नेम इंग्लिश मीडियम एंड स्वयं आपके द्वारा नाम लिखना हिंदी मीडियम को भी। तो ये आपका नोमेनक्लेचर का सिस्टम हुआ। कुछ एग्जांपल्स मैं इसी में आगे आपको दे रहा हूं, उनको आपको लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस में यदि कोई भी डाउट हो तो वो मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर लेना। थैंक्स।